জয় শ্রী মাতাজি। আমরা সাপ্তাহিক সহযোগ ধ্যানের সেশন শুরু করছি। আমরা আমাদের অ্যাটেনশন বা চিত্ত সহস্রায় রাখব। চিত্ত সহস্রায় রেখে আমরা শ্রী মাতাজিকে আহ্বান করব। আমাদের হৃদয়ে ডান হাত হৃদয়ে স্থাপন করে মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের হৃদয়ে আসুন। আপনার হৃদয়ের আলোকে আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করে দিন। মা, আপনার কৃপায় জেনেছি আমরা শুদ্ধ আত্মা। আমরা দেহ, মন, বুদ্ধি, অহংকার কিছু নই। আমরা শুদ্ধ আত্মা আর আপনি পরমাত্মা। এই ভাবটা আমরা হৃদয়ে পোষণ করে নতমস্তকে শ্রীমাতাজিকে প্রণাম করব এবং তারপরে কুণ্ডলিতে বন্ধন নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন গানের সুরে 3 মহামন্ত্র করব। ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী মহাসরস্বতী মহাকালী ত্রিগুণাত্মিকা কুণ্ডলিনী সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। ওম ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কালকি সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। ওম ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী কালকি সাক্ষাৎ শ্রী সহস্রা স্বামিনী মোক্ষ প্রদায়িনী মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ।
মন্ত্রের আকারে শ্রী গণেশ মন্ত্র। ওম ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। আমরা অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা ব্যালেন্সিং করব। আমরা বাম হাত কোলে রাখবো, ডান হাত মাটিতে রেখে বাঁ দিকের জন্য আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের ইরা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে ধরিত্রীর মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন আমাদের ডান হাতের মাধ্যমে, যাতে আমাদের ইরা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয়। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে আমাদের ইরা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমাদের ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে শোষণ করিয়ে দিন, যাতে আমাদের ইরা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমরা সমতায় থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। আমরা আরও একবার প্রার্থনা করব শ্রী মাতাজির কাছে, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের ইরা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমাদের ডান হাতের মাধ্যমে ধরিত্রীর মাটিতে মিশিয়ে দিন, যাতে আমাদের ইরা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমরা সমতায় থাকতে পারি। আমরা একবার শ্রী মহাকালী ভৈরবনাথের মন্ত্র নেব। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহাকালী সাক্ষাৎ শ্রী ভৈরবনাথ সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। আমরা ডান হাত করে রাখবো, বাঁ হাত আকাশের দিকে মনে মনে প্রার্থনা করব, মা আপনি কৃপা করে আমাদের পিঙ্গলা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমাদের বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমাদের পিঙ্গলা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমরা সমতায় থাকতে পারি। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের পিঙ্গলা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমাদের বাম হাতের মাধ্যমে আকাশ তত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমাদের পিঙ্গলা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমরা বর্তমানে স্থিত থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি। আরও একবার প্রার্থনা করব শ্রী মাতাজির কাছে, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের পিঙ্গলা নারীর যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার আমাদের বাম হাতের মাধ্যমে আকাশতত্ত্বে মিশিয়ে দিন, যাতে আমাদের পিঙ্গলা নারী পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ হয় এবং আমরা সমতায় থাকতে পারি, ব্যালেন্সে থাকতে পারি।
আমরা শ্রী মহা সরস্বতী শ্রী হনুমানের মন্ত্র নেব। ওম ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহা সরস্বতী সাক্ষাৎ শ্রী হনুমান সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা এখন দুই হাত হৃদয় বরাবর রাখবো, হাত লেভেলে রেখে মনে মনে প্রার্থনা করব চিত্ত সহস্রে। হে আদিশক্তি মা, আপনি কৃপা করে আমাদের সুষুম্না নাড়ি যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমাদেরকে বর্তমানে স্থিত করে দিন। শ্রীমাতাজি, আপনি কৃপা করে আমাদের সুষুম্না নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমাদের বর্তমানে স্থিত করে দিন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের সুষুম্না নাড়ির যাবতীয় রোগ ব্যাধি বাধা সমস্যা এবং বিকার দূর করে আমাদেরকে বর্তমানে স্থিত করে দিন, যাতে আমরা ব্যালেন্সে থাকতে পারি, সমতায় থাকতে পারি। আমরা শ্রী মহালক্ষ্মী এবং শ্রী গণেশের মন্ত্র নেব। ওম তমেব সাক্ষাৎ শ্রী মহালক্ষ্মী সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদি শক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবী নমো নমঃ। আমরা অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন শ্রী মাতাজির অমৃতবাণী শুনব। আমাদের আজকের অমৃতবাণী এর আগেও আমরা এটা শুনেছি। निर्विचार स्थिति को प्राप्त करे, निर्विचार स्थिति को प्राप्त करे। পাবলিক প্রোগ্রাম দিল্লিতে 29/3/1986 সালে হয়েছিল। 86 সালে যে আমাদের পাবলিক প্রোগ্রাম হয়েছিল, এটা বার্থডে পুজো উপলক্ষে হয়েছিল। সেই পুজোর প্রবচনের আমাদের অমৃতবাণী শ্রীমাতাজি আমরা এখন চিত্ত সহস্র থেকে শুনব। आप योगी जन, आपके पास असंख्य शक्तियां हैं जो कि आप स्वयं उन्हें जागृत कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम माँ तुमको समर्पित होते हैं, मैंने क्या समर्पण किया? मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। किस चीज़ को आप समर्पित कर रहे हैं? सोचिए कौन सी बात है जिसे आप मेरे और समर्पित कर रहे हैं। आप समर्पित कर रहे हैं यही जो बनाए हुए बेड़े हैं आपके, यही जो घरौंदे जिसमें आप बैठे हुए हैं, यही जो अपने अपने जिसे कहते हैं जेल बनाए हुए हैं, जिस जेल के अंदर आप बड़े व्यवस्थित रूप से सोच रहे हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में, इसको ही त्यागना है। और वो त्यागने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ध्यान धारणा में निर्विचारिता में जाए। जब आपके मन में विचार आता है तो उस विचार ही के माध्यम से आपके ये पिछले किए हुए, कहना चाहिए घरौंदे आपको घेर लेते हैं। जितनी देर आप निर्विचारिता में बैठ सकेंगे उतना ही आपका वृक्ष बढ़ेगा।
निर्विचारिता में ही आत्मिक पृष्ठ बढ़ता है और कोई ऐसा वातावरण नहीं जिसमें ये इसकी वृद्धि हो सकती। कोई कहेगा कि हमने खूब बैठ के माँ के भजन गाए, उससे कोई कितना भी भजन गाए, कोई कितने भी मंत्र कहे, चाहे कुछ कह ले, उस मंत्रों से या उस भजन से अगर आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित नहीं होती तो आप चूक गए उस बात। बहुत से लोग हैं, हमने देखा, अभी एक देखा हमने, हरे रामा होरे रामा होरे रामा, पागल के जैसे सारी दुनिया दौड़ रही। अभी कहाँ जा रहे हैं? एक मनोरंजन करते हुए सारे दौड़े जा रहे हैं, हरे रामा। उससे क्या मिलेगा? उससे किसी को कुछ मिला? किसी में कोई परिवर्तन आया? कोई उनमें अच्छाई आई? सिर्फ आपने बजाय इसके कि आप इस तरह के कपड़े पहने के कुछ और कपड़े पहन लिए और रास्ते में आप दौड़ते घूम रहे, चिल्लाते हुए हरे रामा हरे कृष्णा। आपके अंदर कृष्ण की कोई चेतना आई है? कृष्ण की चेतना है कि आप साक्षी स्वरूप हो जाते, क्या आप साक्षी स्वरूप हो गए? फिर इस तरह की बाह्य चीज़ों में उलझ जाने से भी मनुष्य कभी कभी अपनी ऊर्ध्वगामी गति को बदल करके अधोगामी पर आ सकता है। जैसे एक छोटी सी चीज़ मैंने आपसे बताई, मनोरंजन सहयोग में मना नहीं है, लेकिन मनोरंजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। लेक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। मंत्र ऐसे कहना चाहिए जिससे आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित हो। ध्यान ऐसा होना चाहिए जिससे आपके अंदर निर्विचारिता आनी चाहिए। कोई सा भी कार्य करते वक्त अगर आप निर्विचार हो जाएं तो सारी परमात्मा की शक्तियाँ आपके अंदर से कार्यान्वित होंगी। तो सबसे पहली बात है कि निर्विचारिता में उतरना चाहिए। लेकिन लोगों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें विचार को चालना है, जिसमें मनुष्य सोचता रहे, पागलों जैसे सोचता उसको समझ ले कि हा मैंने कितना सोचा, या पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसा सोच ले कि हाँ मैं तो बिल्कुल महाविद्वान हूँ। इन विद्वानों के लिए परमात्मा के साम्राज्य में जगह नहीं। जगह है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आत्मा को अपने चित्त पर पूरी तरह से प्रकाशित होने दिया, और उसका माध्यम एक ही है, निर्विचारिता। तो प्रथम निर्विचार समाधि को आपको स्थापित करना चाहिए। निर्विचार समाधि को प्राप्त करने के बाद आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपके अंदर खुद ही परिवर्तन आने लगता है। निर्विचारिता में आप अपने को, स्वयं को देखने लग जाते हैं। आपको दूसरों के अलावा अपने में ही दोष दिखाई देने लगते हैं। सर्वप्रथम जब सहयोगी लोग आते हैं बाहर से, या सर्वप्रथम जो कहना चाहिए सत्य शोधक आते हैं, तो वो यही ढूंढते रहते, अरे ये सहयोगी है, ये तो ऐसा था, वो सहयोगी है, वो तो वैसा था। उन लोगों को देखकर आधे में मुड़ जाते हैं। सहयोग सबके लिए खुला है, सबके लिए द्वार उसके खुले हुए हैं। कोई लोग जो इसके गर्भ में हैं वो बड़े महान हैं, और कोई जो उसके परिधि में जो घूमते हैं, पेरीफेरी पे जो घूमते हैं, उनमें बहुत खराबियां भी हो सकती, पर वो भी अच्छे हो सकते हैं। तो आप उनको ही देख करके मुड़ गए तो आप कहाँ तक पहुँचे? जब आप अंदर आएंगे तब आप देखेंगे कि ये जो गर्भ में बैठे लोग हैं, इनमें कोई विशेषता है, इनमें कोई चमत्कार है, इन्होंने कुछ पाया हुआ है। तब उनको देखते हुए आप सोचें कि हमें भी कुछ पाना है और हमें भी परिवर्तन आना चाहिए। जब आप निर्विचारिता में आते हैं तो साक्षी भाव से आप अपनी ओर देखते हैं और आप फौरन जान लेते हैं, अच्छा तो मैं आजकल चालाकी कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े चालाक बनते हैं आप अपने ही ओर देखते हैं शीशे में, वाह जनाब चालाक महाराज, क्या कहने आपके, फौरन आपकी चालाकी गिर के ज़मीन पर उसी वक्त खत्म हो जाती है। कारण जो चीज़ व्यर्थ है, जिस चीज़ से हमें एक तरह का वज़न हो जाता है, जिस चीज़ से हमारे उत्थान में रुकावट होती, वो चीज़ धीरे धीरे झड़ती जाती है। निर्विचारिता में ही आप हर चीज़ को ऐसा देख सकते हैं जिसे कहना चाहिए निरपेक्ष भाव से, जिसमें कि आपको किसी से भी लगाव नहीं हो सकता। जैसे आपका बच्चा है, आप उसे निरपेक्षता से देखें, उसके और साक्षी और रूप से देखना शुरू करें। आप देखिएगा कि ये मासूम बच्चा कितना सुंदर है, कितना अच्छा है और कितना परमात्मा को प्यारा लगता है। फिर आप देखेंगे कि उसके बोलने में, उसके चलने में, हर चीज़ में उसका जो आनंद है, जो परमात्मा ने अपने सुंदर हाथों से उसमें भरा हुआ है, उसकी एक एक चीज़ में, इतनी छोटी छोटी चीज़ में, उसके चलने में, बोलने में, हंसने में आपको दिखाई देगा कि किस कदर वो बिल्कुल परमात्मा का ही बनाया हुआ कोई रूप है। लेकिन ये न हो ये मेरा बच्चा है,
फिर तूने ऐसा किया, उसको 2 झापड़ मारी, फिर तू ऐसा गया वैसा किया, उसका जितना भी आनंद उठाने का खत्म। निर्विचारित में आप बैठने से बच्चा भी आपको समझ सकता है, और बच्चा ये सोचेगा कि देखिए ये तो मुझे देख रहे हैं और मैं भी इनको देख रहा हूँ, और धीरे धीरे निर्विचारिता की शक्ति जो है उसमें प्रकट होकर के उसको भी आत्म साक्षात्कार हो सकता है। तो तटस्थता जिसे कहते हैं कि तटस्थ होकर के निर्विचारिता में आप दूसरों की ओर नजर करें। सहयोग में जब आप प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम तटस्थ होना चाहिए। जैसे कि एक साइंटिस्ट जब किसी कॉलेज में जाता है शुरू में, तो वो तटस्थ होकर जाता है कि देखें आगे है क्या। लेकिन अगर शुरू ही से आप बहुत अक्लमंद हैं तो आपके आगे सहयोग कहता अच्छा माफ़ करिए, आप जाइए अपने अकल को लेकर। अब जो इन लोगों ने कहा कि आपको बुद्धि से परे उठना चाहिए, सो कहना बात ठीक है, बुद्धि से परे उठना चाहिए, पर कैसे? बुद्धि का असर सारा अपने आज्ञा चक्र पे आता है, और आज्ञा चक्र पे आया हुआ असर निकालने के लिए भी इलाज निर्विचारिता है। बुद्ध ने तो सिर्फ कहा था कि आप अपनी आत्मा ही को प्राप्त करो, बाकी सब बात छोड़ो, भगवान की बात छोड़ो, कोई बातें मत करो। निरीश्वरवाद की बात करी, उनका छोड़ दीजिए। सिर्फ परमात्मा को पाने की बात करने से अच्छा है सिर्फ अपने आत्मानुभव को ही आप प्राप्त करो, बस और कोई बात नहीं करना। वजह ये थी कि और लंबी चौड़ी बात करने में ऐसे लोग मुझको भी पूछते हैं कि माँ हम भगवान कब होंगे? भाई हो जाओगे, हो जाएंगे ना? हाँ हो जाओगे। कब? उसकी कोई तारीख लिख के तो दी नहीं मुझे कि कब हो गए। अगर आप ये समझे कि सिर्फ आप आत्मा मात्र हो जाइए तो आप पहली सीढ़ी पर आ सकते हैं। हमें सिर्फ आत्मा मात्र होना है, माने का सिर्फ आत्मा ही पे रहना। पहले आत्मा तो हो जाइए, फिर आगे की हम लोग बात करेंगे। लेकिन जबकि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो और भी आप सोचते हैं कि हम एकदम से ही बड़े भारी कोई शंकराचार्य हो जाए, तो हो नहीं सकता। आदि शंकराचार्य होने के लिए सहयोग में आते ही सारे गुण नहीं आ जाएंगे, लेकिन पहली सीढ़ी कि जिसको आत्मानुभव है उसे आप प्राप्त करें। आत्मानुभव के लिए फिर वही बात आ गई कि निर्विचारिता में उतरना पड़ेगा। अब ये दिल्ली शहर आपका ऐसा है कि मैं आई तब से राइट स्वाधिष्ठान ऐसे ज़ोर से चल रहा था, मेरे से बैठा तक नहीं गया। इसका मतलब यहाँ लोग सोचते ज़्यादा हैं, करते कुछ नहीं। कम से कम कुछ करेंगे तो जो सोचने की जो गर्मी है वो करने में निकल जाएगी, लेकिन करते कुछ नहीं, ज़्यादा सोचते हैं, प्लानिंग ये वो। अब इतना प्लानिंग यहाँ होता है और देश का हाल देखिए तो समझ में नहीं आता कि कौन से देश में हम बैठे, उसी में जिसमें इतना प्लानिंग होता है। वजह यह है कि जब आप कुछ सोचते भी हैं, जब तक उसमें आप कार्यान्वित नहीं होते, वो सोचने का अर्थ क्या रहता है सिवाय इसके कि अपना शरीर फिर जाए। और ये राइट स्वाधिष्ठान की पकड़ इतनी ज़्यादा यहाँ है कि शुरू से मैं जब से दिल्ली आ रही हूँ देखती हूँ कि राइट स्वाधिष्ठान यहाँ बहुत ज़्यादा पकड़ता है। इसका कारण यहाँ अखबार है, यहाँ पर लोग हमेशा पॉलिटिक्स की बातें करते रहते हैं। यहाँ अभी कोई पॉलिटिक्स पद पे थे, कुछ उतर गए तो वो और ज़्यादा बोलते हैं, उनको कुछ और मिल गए, फिर इधर से वो हो गए, कुछ होते ही रहता है। यहाँ पे ऐसी कोई लोग सिंहासन पे बैठे हैं, कोई सिंहासन से नीचे बैठे हैं, कोई सिंहासन पे चढ़ रहे हैं, कोई सिंहासन से उतरे हुए आपस में इधर उधर दोस्ती कर रहे हैं। एक का दूसरे से झगड़ा होगा तो वो तीसरे से जाके मेल मुलाकात कर रहे हैं। ये सब बेवकूफ़ी का काम वो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल महाबेवकूफ़ी, समय बर्बाद कर रहे हैं। कोई किसी को याद नहीं करने वाला, इससे कोई आनंद की चीज़ तो पाई नहीं, कोई विशेष चीज़ तो पाई नहीं। लेकिन वो घोड़े दौड़ाने की आदत जिसको हो जाती है वो छूटती नहीं, फिर वो एक तरह का घरौंदा होगा। उसके लिए भी यही सोचना चाहिए कि जब ये सब व्यर्थ चीज़ है, सब इसमें कोई समय बर्बाद करना है तो एक कोने पे खड़े होकर देखें कि पागलों जैसे ये क्या अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो सोच लीजिए कि आप में अब धीरे धीरे साक्षी भाव शुरू हो रहा है। साक्षी भाव में मनुष्य किसी भी उलझनों में फंसता नहीं, कोई भी उलझन आती है उसकी और देखता मात्र। शुरू में ज़रूर लगता है कि मैं वहीं खड़ा हूँ। जैसे आज मैं डॉक्टर साहब को समझा रही थी कि अगर आप किसी भीड़ से गुजर करके किसी पहाड़ी पर पहुँच जाए और उस पहाड़ी पर से आप भीड़ की ओर देखें तो कहीं अगर ज़ोर से ब्रेक लगा कुछ लगा तो आपको लगता है कि आप ही वहाँ, तो आप जरा दचक जाए। लेकिन जब आप जान जाएंगे अरे मैं तो पहाड़ी पे बैठा हूँ, मुझे तो देखना मात्र है, तब आप नहीं दचके। ये स्थिति आने के लिए इसे ही निर्विकल्प स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में मनुष्य जो है वो कुछ भी देखता है, जानता है, तो भी वो विक्षुब्ध नहीं होता, शांत देखते रहता है।
अब लोग कहेंगे ऐसी शांति में क्या अर्थ है? अगर ऐसे आदमी शांत हो जाए तो फिर लड़ाई कोई न करे, कुछ न कहे तो विरोध कैसे हो? ऐसे मनुष्य की शांति परमाणु के आपके बम से भी बढ़ के तेजस्वी होती है और बड़ी कार्य करती है। इसके कार्य की आपको महिमा मैं क्या बताऊं कि एक ऐसा शांत पुरुष किसी भी ऐसे स्थान में चला जाए जहाँ गड़बड़ी हो रही है, एकदम से वहाँ बदल आ जाएगा। लेकिन वो पुरुष उस स्थिति में होना चाहिए जहाँ वो शांति पूरी तरह से अपने चारों तरफ उसकी प्रभा फैला सके, सब लोग एकदम से अवाक होकर शांत हो सके। जितनी हड़बड़ी मची वो एकदम से जा कर के एक व्यवस्थित रूप से ठीक हो सके। जैसे कि कोई जादू की कोई उसने विशेष कोई किमया कर दी है या जादू की कोई छड़ी उसने घुमा दी है कि सब एकदम शांत हो गए। इस शक्ति को प्राप्त करना उन लोगों के लिए है जो कि सहयोगी है। आज हम देखते हैं हर जगह शांति के फाउंडेशन बन रहे हैं, शांति का ये है, शांति का वो है। इससे शांति कैसे हो सकती है? शांति तो हमारे अंदर चीज़ है। अब मनुष्य जो खुद कहेगा मैंने तो शांति पा ली, पर दूसरा कैसे शांति पाए? दूसरा शांति पाता है आपकी शांति से प्रभावित होकर के। वो प्रभाव बुद्धि से नहीं होता है, वो प्रभाव अंदर ही अंदर प्रकाशित हो करके दूसरों को भी प्रकाशित करता है और इसी प्रकार मनुष्य शांत हो जाता है। अब सहयोग में आप जानते हैं कि हर तरह के लोग आते हैं, कोई बड़े ही वायलेंट, कोई बड़े गुस्सेले, कोई बहुत ज़्यादा क्रोधी, कोई क्रांतिकारी और बहुत ज़्यादा लड़ने वाले, हर तरह के लोग मैंने देखे। लेकिन सहयोग में आने के बाद धीरे धीरे वो शांत होते जाते हैं। पर इसका मतलब नहीं कि वो डरपोक हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कायरता से भागते हैं, नहीं, एक अपने हिम्मत से खड़े रहते हैं और उनको देख करके बाकी सब शांत हो जाते हैं। एक चीनी कहानी है, बड़ी अच्छी, चीनी कहानियाँ बहुत अच्छी होती है। इसमें से एक कहानी ऐसी है कि वहाँ पर मुर्गे लड़ाए जाते थे पहले। तो एक राजा ने सोचा कि एक बड़ा अच्छा साधु है जिसके पास लोग जाने से बड़े बलवान हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं। तो उन्होंने वो 2 मुर्गे ले जा करके उनको दे दिए कि इनको आप ट्रेन करिए और जब इनकी लड़ाई होगी तब हम आपसे ले जाएं। तो वो मुर्गे उनके पास चले गए। 1 महीने बाद राजा आए, उनका अच्छा दे दीजिए इन मुर्गों को। तो ये मुर्गे अपने शान से ऐसे खड़े हुए, बस राजा ने उनको उठाया और ले गए और उस प्रांगण में छोड़ दिया जहाँ पर लड़ाई होने वाली थी। सब मुर्गे उसमें घुस गए। अब वो सब मुर्गे आपस में लड़ने लगे, ये अपने दोनों यूं ही खड़े। सब लड़ते लड़ते उनको देख करके हैरान हुए कि ये तो लड़ते ही नहीं। और जब भी उनके ऊपर वो सोचे कि हम इनको लड़वाएं तो बस यूं ही देखते रहे। सब मुर्गे हार करके चले गए, यही 2 वहाँ पर खड़े रहे। इस कहानी का आशय यह है कि जब मनुष्य शांति के सागर में पूरी तरह से विद्यमान होता है तो जैसे कमल पुष्प के जैसे उसके सुगंध से लोग सुरभित होकर के शांतमय हो जाते हैं, पूर्णतया उनके अंदर शांति आ जाती है। इससे बढ़ के और क्या शक्ति शांति की हो सकती? जय श्री माताजी। আমরা শ্রী মাতাজি অমৃতবাণী শুনলাম। এখন আমরা শ্রী গণেশ শতবিংশ পাঠ করব ডান হাত মাটিতে রেখে। ওম নমস্তে গণপতয়ে তমেব প্রত্যক্ষং তত্ত্বমসি তমেব কেবলম কর্তাসি তমেব কেবলম ধর্তাসি তমেব কেবলম হর্তাসি তমেব সর্বম খলিদং ব্রহ্মাসি ত্বাম সাক্ষাৎ আত্মাসি নিত্যম হৃতম বাচমি সত্যম বাচমি হাব ত্বাং মাং হাব ভক্তারম হাব শ্রোতারম
অবধাতারম অবধাতারম অবনুজনম অবশিষ্যম অবপশ্চাৎ অবপুরস্তাৎ অবোত্তরাৎ অবদক্ষিণাৎ অবতূর্ধাৎ অবধরাৎ সর্বতমাং পাহি পাহি সমন্তাৎ ত্বং বাংময়স্তং চিন্ময়ঃ ত্বং আনন্দময়স্তং ব্রহ্মময়ঃ ত্বং সচ্চিদানন্দ অদিতিহসি ত্বং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি ত্বং জ্ঞানময় বিজ্ঞানময়সি সর্বং জগদিদং তত্ত্ব জায়তে সর্বং জগদিদং তত্ত্ব তিষ্ঠতি সর্বং জগদিদং ত্বয়ি লয়মেষ্যতি সর্বং জগদিদং তেয়ি প্রত্যেতি ত্বং ভূমিরাপঃ অনলঃ অনিলঃ নভঃ ত্বং চত্বারি ওয়াকপদানি ত্বং গুণত্রয়াতীতঃ ত্বং দেহত্রয়াতীতঃ ত্বং কালত্রয়াতীতঃ ত্বং মূলাধার স্থিতোऽসি নিত্যং ত্বং শক্তি ত্রয়াত্মকঃ ত্বং যোগিনো ধ্যায়ন্তি নিত্যং ত্বং ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণু ত্বং রুদ্র ত্বং ইন্দ্র ত্বং অগ্নি ত্বং বায়ু ত্বং সূর্যা ত্বং চন্দ্রমা ত্বং ভূর্ভুবঃস্বরং গণাদিং পূর্বমুচ্চার্য বর্ণাদি তদনন্তরম অনুসার পরতরঃ অর্ধেন্দুলোচিতং তারেণ ঋদ্ধং এতত্তব মনোস্বরূপম গকার পূর্বরূপম অকার মধ্যম রূপম অনুসারাশ্চান্তরূপম বিন্দুরুত্তরূপম নাদ সংধানাং সংহিতা সন্ধি শৈষা গণেশ বিদ্যা গণক ঋষি নিশ্চিত গায়ত্রী ছন্দঃ গণপতি দেবতা ওং গং গণপতয়ে নমঃ একদন্তায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তি প্রচোদয়াৎ একদন্तं চতুর্হস্तं পাশমঙ্কুশধারিণং হ্রদং চ বরদং হস্তবিভান মূষকধ্বজং রক্তলম্বোদরং শূর্পকর্ণকং রক্তবাসসং রক্তগন্ধানুলিপ্তাঙ্গাং রক্তপুষ্পে সুপূজিতাং ভক্তানুকম্পিনাং দেবাং জগৎকারণমাতৃতাং আবির্ভূतं চ সৃষ্টি আদৌ প্রকৃতে পুরুষাৎ পরম এবং ধ্যায়তি ও নিত্যং স যোগী যোগিনাবরঃ নমো ভ্রাতপতয়ে নমো গণপতয়ে নমঃ প্রমথপতয়ে নমস্তে হস্তু লম্বোদরায় একদন্তায় বিঘ্ননাশিনে শিবসুতায় শ্রীবরদমূর্তয়ে নমো নমঃ সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবে নমো নমঃ। আমরা
মনে মনে শ্রী মাতাজির কাছে প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদেরকে উত্থান দিন। মা, আপনি কৃপা করে আমাদের মধ্যে শ্রী গণেশ তত্ত্ব স্থাপিত করে আমাদেরকে উত্থান দিন। শ্রী মাতাজি, আপনি কৃপা করে সমস্ত রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বিভিন্ন রকমের প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্য শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং প্রকোপ থেকে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন। আমরা অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকব। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা এখন ভজন করব, ভজন করে ধ্যানের অবস্থায় যাব। আজকের প্রথম ভজন নমামি শ্রী গণরাজ দয়াল, নির্মলাঞ্জলি 124 124, ছোট নির্মলাঞ্জলি 112 112, সেকেন্ড বই 83 থার্ড বই 81 আর ফোর্থ বই নির্মলা বন্দনা 73। নমামি শ্রী গণরাজ দয়াল। নমামি শ্রী গণরাজ দয়াল, নমামি শ্রী গণরাজ দয়াল, करत भक्तन का प्रतिपाल, करत भक्तन का प्रतिपाल, नमामि श्री गणराज दयाल, नमामि दयाल। निषिदिन ध्यान धरे जो प्राणी, हरे सकल भवदान। निषिदिन ध्यान धरे जो प्राणी, हरे सकल भवदान। जन्म मरण से होत निराला, जन्म मरण से होत निराला, नहीं लगती करमाल, नमामि श्री गणराज दयाल, नमामि श्री गणराज दयाल। लंबोदर गजबदन मनोहर, लंबोदर गजबदन मनोहर, गले फूल की माल। लंबोदर गजबदन मनोहर, गले फूल की माल। रिद्धि सिद्धि चामर दुलारे, रिद्धि सिद्धि
दुखहार नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल मूषक वाहन त्रिशूल परे सुधर चंदन तिलक विशाल मूषक वाहन त्रिशूल परे सुधर चंदन तिलक विशाल ब्रह्मादीप सब धावत तुमको ब्रह्मादीप सब धावत तुमको अर्जितु करायावल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल करत हो भक्तन का प्रतिपाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल नमामि श्री गणराज दयाल। পরের ভজন ओंकार स्वरूपा निर्मलांजलि 46:4-6 छोटो निर्मलांजलि 76:7-6 सेकेंड বই 177:177 থার্ড বই 185:185 আর যেটা নতুন বই निर्मला वंदना 158 ओंकार स्वरूपा। ओंकार स्वरूपा ओंकार स्वरूपा ओंकार स्वरूपा तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथ नाथ तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथ नाथ तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो नमो माया बापा गुरु की प्रधाना नमो माया बापा गुरु की प्रधाना छोड़िया बंधना माया मोहा छोड़िया बंधना माया मोहा मोह जाल माझे ओम निरसिया दयाला सद्गुरु राया तुझे नमो 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 ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथ नाथ तुझे नमो तुझे नमो तुझे नमो
तुझा नमो तुझा नमो सद्गुरु राया माझा आनंद सागर सद्गुरु राय माझा आनंद सागर कैलास का आधार गुरुराव कैलास का आधार गुरुराव कैलास का आधार गुरुराव गुरुराव स्वामी अशेष प्रकाश गुरुराव स्वामी अशेष प्रकाश जापुरे उदास चंद्र रवि जापुरे उदास चंद्र रवि जापुरे उदास चंद्र रवि रवि शशि अग्नि नैनकी रूपा रवि शशि अग्नि नैनकी रूपा सप्रकाश रूपा नेने विना सप्रकाश रूपा नेने वेदा सप्रकाश रूपा नेने वेदा तुझा नमो सप्रकाश रूपा तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथ नाथ तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म एका जनार्दनी गुरु परब्रह्म तैचे पैनाम सदामुखी तैचे पैनाम सदामुखी तुझा नमो तैचे पैनाम सदामुखी तुझा नमो तुझा नमो तुझा नमो ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था अनाथ नाथ तुझा नमो 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 तुझा नमो। পরের ভজন অন্যথা শরণম নাস্তি অন্যথা শরণম নাস্তি সেকেন্ড বই 50 থার্ড বই 72 আর ফোর্থ বই যেটা নির্মলা বন্দনা 66 আর নির্মলাঞ্জলি 47 আর ছোট নির্মলাঞ্জলি 117 অন্যথা শরণম। এই ভজনের পরে আমরা ধ্যানের অবস্থায় যাব। অন্যথা শরণম নাস্তি তমেব শরণম মম অন্যথা শরণম নাস্তি তমেব শরণম মম হৃদয়ং সমর্পয়ামি প্রাণং সমর্পয়ামি তব পদ পদ্মি মাতঃ সর্বং সমর্পয়ামি অন্যথা
शरणं नास्ति तमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तमेव साक्षात् हरिप्रिया तमेव मावागेश्वरी तमेव साक्षात् हरिप्रिया तमेव मावागेश्वरी महादुर्गा महाकाली महामाया महेश्वरी भागं समर्पयामि कर्मं समर्पयामि तव पदपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि स्वयं सिद्धा स्वयं प्रभा सुगुणरत्ना सुकृतकृता सुमति गंगा समुज्ज्वला मानं समर्पयामि गानं समर्पयामि तव पदपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम अनिर्वचनीय आनन्दे सुखकारिणी दुःखहारिणी अनिर्वचनीय आनन्दे सुखकारिणी दुःखहारिणी योग संस्थापनार्थाय अविरल विश्वविहारिणे संघं समर्पयामि पुण्यं समर्पयामि तव पदपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तिमिरावृता दिशाहीना आत्मस्य पापनाशिनी तिमिरावृता दिशाहीना आत्मस्य पापनाशिनी बहुजनहिताय वाणी तव शाश्वत सत्यप्रकाशिनी आद्यां समर्पयामि अन्तं समर्पयामि तव पदपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति
त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজিকে প্রণাম করে আরতির জন্য উঠে দাঁড়াবো। प्रभु को दुआ देना, माँ सब को दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सब को दुआ देना। सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार, माँ कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू यमुना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको, माँ सुख ही मिला उसको। बैठे दिलों में ओ माँ, बैठ के दिलों में ओ माँ, लौट के ना जाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला, माँ कर दिया उजियाला। कलियुग में माया है, कलियुग में माया है, फिर भी पहचाना, माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सब
पदुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो। माँ मधुर संगीत सुन लो। हो ऐसा के जो सेवा, हो ऐसा के जो सेवा हमसे करा देना। माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना। माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना। माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ दे, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। श्री निर्मला देवी नमो
नमः श्री निर्मला देवी नमो नमः। बोलो श्री आदि शक्ति भगवती माता जी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी। জয় শ্রী মাতাজি। আমরা অল্প সময় ধ্যানের অবস্থায় থাকবো। জয় শ্রী মাতাজি। এখন আমরা ওয়াল ম্যাপে ভাইব্রেশন দেব। চিত্ত সহসায় রেখে, যাদের ওয়াল ম্যাপ নেই তারা মাটিতে সার্কেল এঁকে বৃত্ত এঁকে তার মাঝখানে ওয়াল ম্যাপ লিখে নেবেন। আমরা মনে মনে প্রার্থনা করব, সেই ম্যাপের উপরে ভাইব্রেশন দেব আর মনে মনে প্রার্থনা করব চিত্ত সহস্র রেখে। হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আর একবার আমরা প্রার্থনা করব, হে আদিশক্তি পরম পূজ্যা শ্রী মাতাজি নির্মলা দেবী, আপনি কৃপা করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন এবং ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন। আমরা এবার দুই হাত কোলে রাখব, চিত্ত সহসায় রেখে অল্প সময়ের জন্য ধ্যানের অবস্থায় থাকব আর খেয়াল করে দেখব কোথায় কোথায় আমরা বাধা অনুভব করছি।
জয় শ্রী মাতাজি। আমরা শ্রী মাতাজিকে কৃতজ্ঞতা জানাবো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। মা, আপনি কৃপা করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন কোথায় কোথায় বাধা রয়েছে। এই সমস্ত বাধা আমরা শ্রী মাতাজি শ্রীচরণ কমলে সমর্পণ করে দেব। মা, আপনি কৃপা করে এই সমস্ত বাধা দূর করে দিন, ভূমণ্ডলকে নির্মল করুন, সমস্ত বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন এবং বিশ্ববাসীর কল্যাণ করুন। আমরা নতমস্তকে আবার প্রণাম করব, করে কুণ্ডে তুলে বন্ধন নেব। জয় শ্রী মাতাজি। আমাদের আজকের সাময়িক ধ্যানের যে অধিবেশন বা সেশন, তার সমাপ্তি এখানে ঘোষণা করা হয়।